মন্ত্রীর হাত ধরে সবাই আমাদের ডিস্ট্রিবিউশনের কানাইলাল আগরওয়াল সাহেবের হাত ধরে আজকে মমতা ব্যানার্জি ঝান্ডা ধরলো। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা আজকে গোয়ালপুকুরের একসঙ্গে আমরা গোয়ালপুকুরের যে ডেভেলপমেন্টটা অল্প বাকি আছে ওটাকে আমরা পূরণ করব এই 4 বছরে। আমরা যেখানে যেখানে দরকার আছে, জেনুল ভাই জেলা পরিষদ 5টা অঞ্চল আছে, কর্মীর জসমিনা খাতুনের, আমাদের আমজাদ ভাই পঞ্চায়েত সমিতি আছে, পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বসে আছে, সভাপতি আমার বউ আছে, আর আমি জেলার সহকারী সভাধিপতি, আমার সভাধিপতিও ছিল এখানে পম্পা পাল। আমরা যত কাজের দরকার পড়ে জেনুল ভাই 5টা অঞ্চলে, রাস্তা সিঁড়ি হোক, পলসিঁড়ি থেকে হোক, বা এনবিডি থেকে হোক, RIDF থেকে হোক, বা যে ধরনের ডেভেলপমেন্ট হয় আমরা ওর 5টা অঞ্চলে আমরা কাজ এই 4 বছরে আদায় করে নেব। আমাদের জসমিনার হাত ধরে আমরা আমাদের 5টা অঞ্চলে ভালো কাজ করবে আমাদের জসমিনা, আমাদের টিএমসির হাত ধরে আমরা ওর এলাকায় যেখানে যেখানে কাজের প্রয়োজন। আমাদের সভাধিপতি ম্যাডাম বললেন এখানে যে আমি নিজেই এলাকা ওর যাব, খুব ভালো লাগলো আমাকেও। আমিও যাবো ওনার এলাকায়, আমার সহকারী সভাপতি আমার জেনুল ভাইকে নিয়ে আমরা দেখবো কোন জায়গায় বিশেষ দরকার আছে। এর আগেও আমরা রাস্তা পাঠিয়ে দিলাম 5টা অঞ্চলে 15টা রাস্তা আমরা রাস্তার সাথে কালকে পাঠিয়েছি, আমরা বড় বড় রাস্তা পাঠিয়েছি। তারপরে আমাদের জেনুল ভাই এলাকায় বসাগাড়ি ব্রিজের অ্যাপ্রোচ, যে ব্রিজটা 2 দিকে অ্যাপ্রোচটা বাকি আছে, অ্যাপ্রোচ রোড, অ্যাপ্রোচ রোড, ওটাও আমরা মনে হয় এনবিডি থেকে আমার টেন্ডার হয়ে যাচ্ছে মনে হয়, আমরা ওটাও এস্টিমেট করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটা খুব খুশি যে আমাদের জেনুল ভাই আমাদের পার্টিতে যোগদান করেছেন। আর যে পার্টিতে দেখেন আমরা কংগ্রেসে ছিলাম, যখন আমাদের সম্মানটা রাখা হলো না তখন আমরা টিএমসিতে চলে গেলাম 2014-তে 1 জুলাইতে। আমাদের সঙ্গে ওই রকমই হয়েছিল, এমএলএ সাহেবের সঙ্গে আমার সঙ্গে ওই রকম হয়েছিল। কংগ্রেসে যখন সম্মান পেলাম না, আমরা জানে জেনুল ভাই ও লেফট রাজনীতি করতো, আমরা রাইট রাজনীতি করতাম, কিন্তু আমরা কংগ্রেসে করতাম তো কংগ্রেসে করতাম, উনি লেফট করতো তো লেফটে করতো। এমনি পলিটিক্যাল ম্যাটার হতে পারে, কোনো কিন্তু আমাদের পার্সোনাল কোনো লড়াই নাই। তো সেই জন্য আজকে আমি খুশি, ওনাকে সম্মান দেওয়া হলো না কংগ্রেস পার্টিতে, একটা জেলা পরিষদ মেম্বার, ওনার বাবাকে সম্মান দেওয়া হলো না, তো আম পাবলিককে কি সম্মান দিবে কংগ্রেস? উত্তর দিনাজপুরে যখন জেলা পরিষদ মেম্বারকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে না, ওনার বাবাকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে না, সাদিকুল ভাইকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে না, তো কেন কংগ্রেস ছাড়ে টিএমসিতে আসবে না? আজকে আপনারা দেখেন মোহাম্মদ রেজা 2018 বামফ্রন্ট ছেড়ে আসলো, আজকে কি সম্মান পেয়েছে নিজেই বলতে পারবে। সব্বির সাহেব ওনার বউ এমএলএ ছিল ইসলামপুরের, উনি কেন ছেড়ে চলে আসলো? সম্মান পেল না। আজকে শিবুর রহমান সাহেব আমাদের সঙ্গে ইলেকশন ফাইট করেছিল 2011-তে, উনি কেন ছেড়ে চলে আসলো? মলি সাহেব আমাদের সঙ্গে 2016 ফাইট করেছিল, উনার ছেলে আজকে পঞ্চায়েত সমিতি মেম্বার টিএমসি। আমাদের কেন? আমাদের বিহেভটা ভালো আছে, আমরা সম্মানটা সবাইকে নিয়ে চলি। আর মন্ত্রী সাহেব একটা কথা বলে দিল এখানে, যে যার যার যে জায়গা দরকার ওই জায়গা আমরা গোয়ালপুকুরের কোর কমিটি আমরা বসে ঠিক করে দিব, যেন কোনো নেতা যেন অসম্মান না হয়। আমরা সম্মান ওদেরকে নিয়ে আমরা চলবো আর সম্মান দিব আমরা পার্টি থেকে। দাদা জয়নুল দা বললো একটু আগে যে আপনার সঙ্গে সবসময় ডিফেন্সে খেলতো, তো আপনাদের লোকসভা নির্বাচনে একটা মানে লিড সেরকম পরিমাণে হয়নি, তাই সামনে বিধানসভা নির্বাচন কতটা আপনাদের বলবান হলেন আপনারা? আমি তো নিজেই বলছি যে বিধানসভায় রেজাল্ট এখন জেনুল ভাই ওর মেয়েকে নিয়ে চলে আসলো, তারপরে আমাদের অল এখানকার যত নেতা আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের আমাদেরকে ছেড়েছিল সব আমাদের পার্টিতে চলে আসছে। এই রেজাল্টটা কিন্তু বিধানসভায় আবার ছাপিয়ে যাবে। 2026-এ দেখবেন আপনার রেজাল্ট কীভাবে হবে। আর জেনুল ভাই আজ থেকে রাজনীতি করেনি, আমি যখন রাজনীতিতে করছি তখন উনিও রাজনীতি করছে ওখান ততদিন থেকে। সেজন্য আপনাদেরকে বলছি কি আমরা এবার গোয়ালপুকুরটাকে সাজাবো, আমরা গোয়ালপুকুরটাকে ভালো করে আমরা সাজিয়ে দেবো। আর মমতা ব্যানার্জি হাতটাকে শক্ত করবো, এখানে যে যাকে টিকিট দেবো মমতা ব্যানার্জি টিএমসি থেকে পার্টি থেকে আমরা ওকে ভালো ভোট থেকে জিতে পাঠাবো। थैंक यू। सादिक साहब क्या कहेंगे? सादिक साहब आप खुद कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में और फिर दूसरे को लेके भी आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो खुशखबरी पर एक शेर का एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है तुम आए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है तुम आए तो। और ये तो खुशखबरी के शेर था कि वो अपनी बच्ची के साथ, अमजद भाई के साथ आज दीदी ममता बनर्जी और टीएमसी की जो उन्नति है, प्रगति है, डेवलपमेंट है, और मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब की जो कोशिश है तमाम लोगों को एक ही धागे में बांधने की, तमाम लोगों को एक ही धागे में पिरोने की और तमाम लोगों को एक साथ ले चलने की, उस कोशिशों में आज एक नया मोड़ आया है
कि हमारे मजे हुए लीडर और एवरग्रीन लीडर जिसको कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था और मैंने बहुत करीब से जैनुल भाई को देखा कि ज़मीनी लीडर हैं, संघर्षी लीडर हैं, ऑनेस्ट लीडर हैं और मेहनत करने वाले लीडर हैं और लोग और जनगण के काम आने वाले लीडर हैं। क्योंकि रात को कभी 1-2 बजे फ़ोन जाता था कि भाई थोड़ा सा आप करीब हो, हॉस्पिटल में जाके देखना, मेरे यहाँ से एक पेशेंट गया है, उसकी थोड़ा खबरगिरी ले लेना। तो इस तरह के लीडर वो हैं, उनके साथ हमने काम किया है। ज़्यादा बोल के नहीं, मैंने एवरग्रीन लीडर बोल दिया है कि वो फॉर्ट ब्लॉक में थे तब भी जिला परिषद थे, कांग्रेस में थे तब भी जिला परिषद है, अब टीएमसी में आए हैं तो यहाँ भी अच्छा होगा। लेकिन ये तो खुशखबरी की बात थी कि आज ममता बनर्जी की हाथ को मजबूत करने के लिए गुलाम रब्बानी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, मोनी भाई के हाथ को मजबूत करने के लिए आज वो टीएमसी में शामिल हुए। उनकी बच्ची जो हमारी बेटी की तरह है और बेटी की उम्र के हैं, वो आज शामिल हुई है। तो ज़रूर जो है टीएमसी ग्वालपकोर में, उत्तर दिनाजपुर में मजबूत होगा। लेकिन मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है। इस शेर को ग्वालपकोर के लोगों को, चाकुलिया के लोगों को, करंदगी के लोगों को समझने की ज़रूरत है और समझने के बाद इस पर अमल करने की ज़रूरत है कि आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमायत से है। आबरू मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान। जो सम्मान की बात आई है, जिससे त्याग पत्र दे करके आज वो टीएमसी में आए, तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमायत से, जमायत में यूनिटी, एकता, मिल्लत की जमायत से है। जब ये जमायत गई तो दुनिया में रुसवा तो हुए। ये बहुत मीनिंगफुल शेर है और यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो हम यहाँ रुसवा हुए, बेइज्जत हुए, बेआबरू हुए, टीएमसी का कैंडिडेट हार गया, बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, तो उसका मतलब है कि हम लोग की जमायत जो थी, हमारी जो यूनिटी थी, हमारा जो एकता था, वो ख़त्म हो गया था। हम अलग जगह थे, जैनुल भाई अलग जगह थे। अगर उस वक्त हम सब लोग एक ही बैनर में होते तो वोट का बंटवारा नहीं होता, और वोट का जब बंटवारा नहीं होता तो दीदी को एक सीट और मिल जाती। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और कुछ लीडर जो है अपने वजूद, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जिसको बोलते हैं, कांग्रेस बंगाल में अपने वजूद और बका की लड़ाई लड़ रही है, जबकि दीदी और गुलाम रब्बानी और टीएमसी पार्टी जो है वो देश के वजूद और बका की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोनों में बहुत फर्क है। तो इसलिए देश के वजूद को पहले बचाना पड़ेगा, क्योंकि जब देश नहीं रहेगा, देश की संस्कृति खत्म हो जाएगी, भाईचारे की खत्म हो जाएगी, तो हर तरफ जो है दंगे फसाद, मार, कत्लो गारत, इस तरह के जो आपको हिंदुस्तान में मोदी आने के बाद देखा गया है, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए अब जब हम लोग धीरे धीरे एक ही बैनर में आ रहे हैं और ममता बनर्जी की जो आइडियोलॉजी है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो, उसमें सब लोग आकर के उनके हाथ को मजबूत कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी को मजबूत कर रहे हैं। तो इसलिए ग्वालपकोर के लोगों को और ये 3 ब्लॉक के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के कैमरे के माध्यम से, आपने जो वोट दिया विक्टर साहब को, तो मंत्री साहब ने हमको पहले ही बोल दिया था कि विक्टर जीत नहीं पाएगा। अगर बीजेपी को जिताना चाहते हो तो तुम लोग कांग्रेस करो, और अगर तुम लोग देश को बचाना चाहते हो, देश की संस्कृति को बचाना चाहते हो, तो दीदी के झंडे को पकड़ो और दीदी के आइडियोलॉजी में हाँ से हाँ मिलाओ। तब हम लोग, मैं और हमारे नूर भाई जो ग्वालपकोर के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे और चाकुलिया के ब्लॉक प्रेसिडेंट, हम लोग 4 दिन पहले पार्टी को ज्वाइन किए थे। जिस बात के डर से और जिस खतरे की वजह से मंत्री साहब ने हमको पहले कहा था, उसी खतरे को फिर लाहिक हुआ, और वही हुआ कि लोगों ने गलती से जो है विक्टर साहब को वोट दे दिया और 2,63,000 वोट पाए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि टीएमसी की कैंडिडेट हार गया। तो इसलिए आगे ऐसी गलती नहीं करना है। लास्ट एक डायलॉग के साथ मैं अपनी ये बात को ख़त्म करूँगा कि एक किसी कहने वाले बहुत बड़े बुजुर्ग और स्कॉलर ने कहा है कि अपने घर, ये मैं मंत्री गुलाम रब्बानी को डेडिकेट कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है कि अपने घर के शेर को मत मारो, नहीं तो आसपास के कुत्ते तुम्हें नोच डालेंगे। तो इस बात में बारीकी है, समझने की जरूरत है। आज वो मंत्री है और हमारे सरकार के एक रुकन है, मजबूत पिलर है, और ग्वालपकोर की शान, आन बान शान है।
तो उनको नुकसान पहुंचाना पॉलिटिकली, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि कहीं जाकर के आप जाके बोल तो सकते हो कि मैं गुलाम रब्बानी की कंस्टिट्यूंसी से हूँ, मैं उत्तर दिनाजपुर से हूँ, गुलाम रब्बानी साहब मेरे जानने वाले हैं, मैं गुलाम रब्बानी साहब और दीदी की पार्टी करता हूँ, तो ये आपको फख्र की बात है। तो उनको क्या कहते हैं, पॉलिटिकली नुकसान ना पहुंचा करके हम सब मिल करके दीदी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएं और टीएमसी को मजबूत करें, ताकि देश की संस्कृति जिंदा रहे। थैंक यू দাদা, গোয়ালপুরে তো একের পর এক কংগ্রেসের পতন দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেসের তো সব মানে আপনারা ছিলেন কংগ্রেসে, জয়নুল দাও কংগ্রেসে ছিল, আজকে চলে আসলো, কি বলবেন? देखिए, आदमी का जो है सबसे पहला, आदमी का इज्जत जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। जैनुल भाई अपने जो ज्वाइन किया उस वक्त तो एक बात बोले कि उनके साथ जो मीटिंग में हुआ था, उस मीटिंग में हम लोग थे, हम भी थे, और उस मीटिंग में 3-4 आदमी को काफ़ी टारगेट किया गया था। उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को टारगेट किया था वो जैनुल भाई थे, और उसी दिन से दिल हम लोगों का टूट गया था। जैनुल भाई आज निकल के आए हैं, लेकिन खास करके मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि उसी दिन हमारा दिल टूट गया था कि इस पार्टी को हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हीं का पार्टी करते हैं, और पार्टी की भलाई के लिए अगर कोई कुछ सोचता है तो कुछ ऐसे लीडर हैं हमारे उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों को खराब लगता है। जैनुल भाई बहुत मेहनत की कि यहाँ पर कांग्रेस को अच्छा तरीके से लाया जाए, किनको कैंडिडेट किया जाए। हम लोग एक मूवमेंट चलाए थे, इसमें हुआ क्या कि हम लोगों को तोड़ दिया गया। हाँ, नूर ज़्यादा बोल रहा है उसको हटा दो, और कोई सादिकुल बोल रहा है उनको हटा दो। এটা কে করছিল? हाँ, जैनुल भाई तो बोल दिए अपने भाषण में, वो बोल दिए कि उस मीटिंग में कांग्रेस का जो सुप्रीमो मानते हैं हम लोग, जो दीपादास मुंशी, मोहित चंद गुप्ता, उन्हीं लोगों ने मीटिंग बुलाया। पहले सारे वर्करों को मीटिंग बुला करके फिर सारे वर्कर को वहाँ से निकाल दिया, सिर्फ कुछ लोगों को लेकर बैठा। तो एक बहुत बड़ा साजिश हो रहा था। तो उस साजिश का शिकार जो कैंडिडेट था वो तो हुआ ही। हम लोगों का दिल टूटा, हम लोग निकल के बाहर आ गए, और हमको ये उम्मीद था कि जैनुल भाई जैसे खुददार आदमी उस पार्टी में रह नहीं पाएंगे। तो आज जैनुल भाई भी वो हम लोगों के साथ जुड़ गए आकर के। हम लोग कांग्रेस टीएमसी पार्टी की तरफ से उनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अब हम लोग सब कोई मिल के इंशाल्लाह ग्वालपोखर में जो है टीएमसी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। उनके साथ हमको ये उम्मीद है कि इस बार जो 2027 में इलेक्शन होगा, इस बार ग्वालपोखर में ना के बराबर कैंडिडेट समझिए, ना के बराबर कोई यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के काबिल रहेगा नहीं। ये हम आप लोगों को एश्योरेंस कर देते हैं। ना कांग्रेस से रहेगा, कांग्रेस का जो कैंडिडेट होगा वो तो सड़ गया है, वो तो कुछ कर नहीं सकेगा। बाकी और एक जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो आप लोग जानते हैं वो क्या हाल है उनका। तो इसीलिए कुछ होगा नहीं। इस बार जो है इलेक्शन हम लोग निर्विरोध होने जा रहा है, सिर्फ नाम के वास्ते होगा। থ্যাংক ইউ। আহমেদ দা বারবার করে যিনি যোগদান করলো তার বাবা আজকে বললেন যে আপনার আশ্বাসে মানে কথাবার্তায় ভরসা পেয়ে আজকে যোগদান করলো। মন্ত্রীও আপনার অনেক করলো যে ভালো কাজ করছেন ব্লক প্রেসিডেন্ট হিসাবে, কি বলবেন? मैं ग्वालियर वन ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं जैनुल भाई का, उनका टीम, उनका लड़की, हमारे अमजद भाई, सभी का मैं खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सब जिस तरह से देखिए डेवलपमेंट को देख करके आए हैं सब कोई। ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करना है, अभिषेक बनर्जी का हाथ को मजबूत करना है, हमारे गुलाम रब्बानी साहब, हमारे जिला परिषद के सहकारी सभापति साहब का हाथ को मजबूत करना है। और जैनुल भाई से ऐसी बात नहीं है, जब वो लेफ्ट में थे मेरा वालिद साहब के साथ उनका अच्छा खासा ताल्लुकात था। मेरा राजनीति में ज़्यादा दिन हुआ ही नहीं है। मुनी अंकल बोल रहे थे कि मैं 2017-18 के स्टार्टिंग में ही मैं ज्वाइन किया था, और मेरे वालिद साहब से हमारे जैनुल साहब जो है पहले पॉलिटिक्स करते थे, आते थे, हम लोग घर में भी आते थे। इनके साथ मेरा ऐसी बात नहीं है, वो पॉलिटिक्स में अलग प्लेटफॉर्म में थे। मैं इनके साथ ऐसे खबर खैरियत पूछता, हाल चाल वो भी मुझे पूछते थे कि तुम्हारा वालिद साहब कैसा है। घर का मतलब ऐसे एक तो ताल्लुकात बन गया था।
ऐसे ही मैं उनको भी कहा कि देखिए ऐसा अभी हालात ऐसा है, देश का भी हालात देख रहे हैं और बंगाल का भी हालात देख रहे हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए आप लोग ग्वालपोखर में दूसरा पार्टी में रहकर कोई गुंजाइश है नहीं। बंगाल में हम लोगों को अगर ग्वालपोखर को डेवलपमेंट और अच्छा से अच्छा करना है, अब तो इसी पार्टी जो था बॉन्डिंग था, इसी वजह से ऐसा एक आज मुकाम में हम लोग आए हैं। मैं बस एक चीज़ और कहूँगा, देखिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ग्वालपोखर का मौसम बदलने वाला है। थैंक यू सर।